In today's lecture, we are going to solve the numericals from exercise 1.2 and the numerical number 2. Okay, exercise is 1.2, numerical number 2. In second numerical, what is given? See student, point M is the mid of segment AB. There is a segment whose point M is saying a segment that is AB, A and B, and point M is midpoint. What is midpoint? And if length of AB is 8, what is length of AB is 8? Okay. If AB is 8, then find the segment of AM. We have to find segment AM. Okay. So student, first recall your formula that when I told you about formula na, कि if we have to find about length of a segment, if M is midpoint, then total length divided by 2. That is the basic formula for midpoint. So we can say length of AB. So given, see, length of AB is 8. It's given in book, and we have to find given. It is given, na? Okay. And we know that length of length of AM equals to half of length of AB from midpoint formula, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखो होगा क्या, हमारा क्या हो जाएगा अगर हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ AM, that is half into length of AB. Length of AB is 8, then 2 1 2, 2 4 8, cancel out. Then what is the length of AM is 4. It is the answer. Okay, so length of AM is 4. That is the length of AM is 4. Question number 3. We can write question number 3. Question number C. Student, what is the question number 3? Point P is the midpoint of segment CD. क्या बोल रहा है स्टूडेंट थर्ड में कि पॉइंट P जो है वो CD का मिड पॉइंट है. सेम यही क्वेश्चन, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व. एंड इफ CP is 2.5, then length of CD. मैं हिंट देता हूँ. देखो क्या बोल रहा है कि मिड पॉइंट जो है P है सेगमेंट CD का, CB, that is P is midpoint, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. CP is the given. CP कितना दिया है? CP is 2.5, और तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 2.5 हो जाएगा ना. Then given में क्या है स्टूडेंट? देख लो, लेंथ ऑफ CP is 2.5 ना, 2.5 है. एंड हमसे पूछ क्या रहा है इसमें? लेंथ ऑफ CD. हमें क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ CD. CD फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि लेंथ ऑफ CP is equals to half of length of CD, means length of CD is equals to 2 into length of CP, implies that क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लेंथ ऑफ CP क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ C into D equals to 2 into लेंथ ऑफ CP कितना दिया हमें? 2.5 is equals to कितना हो जाएगा? इसको हम करेंगे तो हमें मिलेगा equals to 5.0 is the answer. Length of CD. Okay. In next numerical number 4,
न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4, लेंथ ऑफ if AB is 5 centimeter, BP is 2 centimeter and AP is 3.5 centimeter. कंपेयर द सेगमेंट्स, हमें क्या करना है, सेगमेंट्स को कंपेयर करना है। कुछ सेगमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट, AB कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, AB is 5 centimeter. सेकंड क्या दिया है स्टूडेंट, BP is 2 centimeter and AP is 3.4 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है स्टूडेंट्स की कंपेयर द सेगमेंट कैसे कंपेयर करें, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है हमारा 5 है, 5 सबसे बड़ा है, ओके ना। 5 से छोटा क्या है हमारा 3.4 है और उससे छोटा क्या है हमारा 2 है, यानी कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा सेगमेंट है हमारा, सबसे बड़ा सेगमेंट कौन सा है, AB है, यानी इससे हम कर सकते हैं AB फिर AP फिर BP सबसे छोटा है, AP सबसे बड़ा है, PP क्या है बीच में है, यानी कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं सेगमेंट BP is greater than segment AP is greater than segment BP. Okay, this is the solution. Question number 5. Question number 5 क्या दिया है स्टूडेंट्स, हाँ इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो राइट द आंसर्स to the following questions with reference to the figure given below. Question number 5, एक फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, डायग्राम, there is a diagram, point T S R, here is point T S R, फिर यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट P और यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट Q, ओके, TSRPQ ये दिया हुआ है पूरा। राइट द नेम ऑफ द ऑपोजिट रे टू रे RP। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट, सबसे पहले देख लो क्या दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ द रे, राइट द नेम ऑफ द ऑपोजिट रे ऑफ रे RP। RP रे का हमारा RP एरिया है, रे क्या होता है स्टूडेंट, मैंने बताया था ना, रे और लाइन मैंने बताया था इसके पहले लेक्चर में, क्या बताया था कि अगर पॉइंट एक तरफ और एक तरफ एरो हो, इस साइड से जा रहा है उसमें क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, और अगर ये हो जाए तो उसमें क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, रे RP के ऑपोजिट पे कौन सा है हमारा, RS हो सकता है, ऑपोजिट पे कौन सा है हमारा RS भी हो सकता है और RT भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऑपोजिट में कौन सा है, अगर यहाँ से हम मान लेते हैं पॉइंट ये है हमारा, इस साइड हमारा रे RP, इस साइड में अगर इसके ऑपोजिट बोल रहा है हमारा क्या होगा, RS हो जाएगा या फिर RT, तो क्या हो जाएगा ऑपोजिट, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट रे इज RS भी बोल सकते हो और RT, ये तो ऑपोजिट में है, ओके। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट द यूनियन सेट ऑफ रे PQ एंड रे QR। यूनियन सेट बोल रहा है स्टूडेंट, यूनियन सेट क्या है, PQ और QR, कहां से बोल रहा है स्टूडेंट, PQ एंड सेकंड क्या बोल रहा है, राइट द सेकंड क्वेश्चन इज, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट सी द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP। PQ और RP का हमें क्या बताना है, इंटरसेक्शंस बताना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटरसेक्शन मतलब PQ और RP, PQ RP का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारा PQ। तो राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड RP। रे PQ इज इंटरसेक्शन, हाँ क्या हो जाएगा PQ। हाँ, इसमें देखो स्टूडेंट ध्यान से देखें तो PQ क्या है, इंटरसेक्शन है दोनों में, RP में भी है और PQ में भी है, तो ये हमारा रे क्या हो जाएगा, रे PQ विद इंटरसेक्शन ऑफ RP एंड RQ, PQ एंड RP। सेकंड थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया स्टूडेंट, राइट द यूनियन सेट ऑफ रे PQ एंड रे QR।
इसका क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान सुनो, राइट द यूनियन सेट, हमें यूनियन सेट दिखाना है, यानी उससे क्या बनेगा, किससे किससे, पी क्यू और क्यू आर से, पी क्यू क्यू आर से क्या बन जाएगा हमारा, पी क्यू एंड क्यू आर से हमारा क्या हो जाएगा, रे पी, तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइन चाहे हम बात करें पी क्यू का और चाहे लाइन बात करें, लाइन अगर हम पी क्यू का बात कर रहे हैं तो उसमें लाइन की बात कर रहे हैं तो इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, या फिर हम लाइन पी आर का भी बात करेंगे तो ये लाइन इस साइड जाएगा, इस साइड यानी वो भी हमारा आ जाएगा यूनियन में, और अगर आरपी का बात करेंगे तो भी हो जाएगा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं उसमें आरपी, लाइन आरपी या फिर लाइन पीक्यू भी करेंगे तो उसमें क्या आएगा, वो दोनों के दोनों चीजें आ जाएंगे, यानी हमारा सेगमेंट आरपी और पीक्यू दोनों सेगमेंट आ जाएंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन का हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, स्टेट द रेस ऑफ व्हिच सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट, सबसेट किसका है, क्यू आर, रे पी क्यू का, आर क्यू का है, क्वेश्चन जैसे दे रहा है रे आर क्यू का, रे एस क्यू का, रे टी क्यू का, रे क्यू आर एंड रे क्यू एस और रे क्यू टी, यानी कि जहां से भी हमारे जो भी क्यू जिस भी रेज में आएगा वो सब उसका क्या हो जाएगा, सेट हो, सबसेट हो सकता है। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ स्टूडेंट, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रे विद कॉमन एंड पॉइंट आर, आर पॉइंट क्या होना, इन पॉइंट बोल रहा है, और क्या बताना है, राइट पेयर ऑफ ऑपोजिट रे, पेयर ऑफ ऑपोजिट रे, तो देखो आरपी और आरएस ये दोनों क्या हैं, जो कल इन पॉइंट क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, सब बोल रहा है, तो आरपी और आरएस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी टू रेस विद कॉमन एंड पॉइंट एस, जहां जिसका क्या हो, कॉमन एंड पॉइंट हो, तो क्या कर सकते हैं, एस आर और एस टी, ये हो सकता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी, दोनों का क्या हो जाएगा, राइट इंटरसेक्शन सेट क्या हो जाएगा इसका, एसपी क्या बोला है, एसपी एंड एसटी, एसपी एसटी का क्या हो जाएगा, एस ही हो जाएगा। तो ये कुछ लाइन का क्वेश्चंस दिया हुआ, लाइन के क्वेश्चन से हमने क्या क्या उसके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसी तरीके से कर लेना सब बाकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग हेल्प ऑफ द फिगर गिवन बिलो, एक फिगर दिया हुआ उसके हमें क्या करना है, आंसर्स बताने हैं। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा, तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये हमें मुझे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो मुझे ये इसका सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का, ओके। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, बाकी का फिर हम देखें, तो इसे नोट डाउन करो जल्दी से।